ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पीड़ितों ने साहस का परिचय देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से औपचारिक रूप से गुहार लगाई है और उनसे तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आड़ में उनके साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार किया गया है। उन्होंने न्यायालय की निगरानी में अपराधों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका दावा है कि न केवल उन्हें नज़रअंदाज किया गया है बल्कि सत्ता और प्रभाव वाली प्रणालियों द्वारा सक्रिय रूप से उन्हें बचाया गया है। ये बातें हैं, ये बनावटी नहीं है, ये बातें हुई है, ये बातें सच है। My husband has become a devotee of Sadhguru Jaggi Vasudev. Initially, he was only volunteering in Hyderabad, and eventually we got initiated into Shambhavi Mahamudra, or they call it as inner engineering, in 2013. And ever since our life went tipsy-topsy, and there are too many disturbances in terms of our family relationships, and we isolated ourselves from our families and drifted towards Isha Foundation in a very huge way. In 2014, I admitted my son in Isha Home School. Isha Foundation has three types of schools. One is Isha Home School, Isha Sanskriti, and Isha Vidya School. So Isha Home School is from grade 1 to grade 13. It's an ICSE school and it's a residential school. So my son was admitted in that school from 6th grade until he graduated from senior high. And he was molested from 8th grade until 10th grade by a co-student. And every time he complained to the management, they would silence him. And that particular child also molested many other kids in the same school. So in 2019, when my son was giving his board exams, the other accused forced himself on my child and tried to rape him. Both of them were in different houses, but in the middle of the night, the other boy came and he tried to forcefully rape my child, to which my young son was very, very traumatized. And he would go and complain to the house parents and the principal. Instead of letting me deal with it, and they have never informed me in the first place. And later on, when my child wrote this email, they tried to just brush it off, saying that it's some boys' play. And my child repeatedly started writing mails saying that, no, it's not just a boys' play. He's trying to grope me for the last 3 years, and I have been informing them, but there is no action whatsoever. That is when I tried to reach the school. They would never ever give it in writing, or they would not return my emails as to how my child is doing or what about his safety. For the next 2 days, I had the most difficult 48 hours because they were not even allowing to talk to my son. And that is when I reached out to Sadhguru's office, where Swami Nakshatra, he takes care of Sadhguru's office. And through him, we tried to reach out to the school, and the school spoke to us. But it's a pattern with homeschool that we cannot talk on the mainline phone. We are always asked to talk on a WhatsApp call, and they never return our emails. So, we spoke to him, and they said they're going to take some action. And, they've also informed Sadhguru about it. But, they have also promised that, please do not talk about this elsewhere, because it's a question of Hindutva. And, there are so many missionaries which are trying to convert Hindus into Christians and Islam.
And if you speak about this, it's going to dent Sadhguru's image and Sadhguru's mission to uphold Hindutva. Although Sadhguru claims that he does not belong to any religion, it is very inconsistent, and most of his satsangs, he simply says that Hindutva has to be upheld at any cost, and that's how they convinced us not to go to the police. And they have also promised us that they're not going to bring back this accused next year. And my son already started his 11th grade. And after that, we took our son back to the school, and suddenly we found the accused, and he came back. My son was horrified, and he said, "I'm not going to be in this school because, they brought this child back." We were let down. We were completely let down and confronted the management, saying that, you promised us and you convinced us that, for the sake of Hindutva, we should not go to the police. And now you are bringing this child back. We do understand that he is also a child, and the management informed us that he has a gay orientation. I have no problem with whatever orientation he has. Just because you have a gay orientation does not give you a license to grope another child or another person. So this was my line of thought, and I was very vehement in my approach, and I insisted that I go to the police. And they said, Sadhguru does not like to criminalize children's behavior, and he wants the child back in the school. And I said, if he was, first you say that it was Hindutva, and now you say that he does not want to criminalize a child's behavior. But if it had to do something with the criminal behavior, what other way to approach this? And I was very, very keen on going to the police. And that is when I said, if not for Isha Foundation, I'm going to put a private complaint on the child that, this concerned person has. राज की हैं, जो बहुत ही करीबी रही हैं जग्गी वासुदेव के, और उनको भी एक समय में ऐसा लगा कि उनके साथ रहना ठीक नहीं है, तो वो उनसे अलग हो गई, और वो काफ़ी हद तक रियलाइज़ करती है कि जो भी बच्चों के साथ हुआ है वहाँ बहुत गलत हुआ है। काफ़ी सॉरी है वो, हम सब जो पेरेंट्स हैं, जो विक्टिम हैं, उनके साथ हुआ है, और वो चाहती है कि ये सब आए सामने। कम से कम जग्गी वासुदेव को कुछ होने से पहले सारी दुनिया को पता चले कि बच्चे वहाँ सेफ नहीं हैं। मेरा जो ईशा फाउंडेशन से जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी शादी जग्गी वासुदेव ने कराई थी। मैं एक विडो थी, अपनी बेटी को लेकर मैं यूएसए गई थी, वहाँ काम कर रही थी, और मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई जो जग्गी वासुदेव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। मुझे लगा कि स्पिरिचुअल आदमी है, अच्छा रहेगा, चलो शादी कर लेते हैं, और जग्गी वासुदेव ने ही हमारी शादी करवाई। उसके बाद धीरे धीरे हम उनके जो उनका एक ट्रैप सिस्टम है, बिजनेस सिस्टम है, कि एक बार तुम उसमें चले जाओ तो फिर वो धीरे धीरे उसमें। और मेरा ये है कि योगा और मेडिटेशन अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ें वो सिखाते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जो उन्होंने उसको एज अ बिजनेस मॉडल बना रखा है, और जिस तरह से वो औरतों का शोषण करते हैं वहाँ, वो चीज़ गलत है। तो हम लोगों को अवेयर होना चाहिए कि हम उस सिस्टम में ना फंसे। हाँ, उनकी अच्छी बातों को सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो जब हमने उनका एक सिग्नेचर प्रोग्राम है, उसको शांभवी कहते हैं, शांभवी महामुद्रा, उसके बिना आप आगे के प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं। शांभवी महामुद्रा के बाद वो कहते हैं कि आप भाव स्पंदना करिए। भाव स्पंदना में वो लड़के और लड़कियों को साथ में रजनीकांत के गानों में नाच नचवाते हैं, और एक अलग तरह का ही एक हिप्नोटिक माहौल रहता है उसमें। सब कोई लोग एक दूसरे को जाके जोर से पकड़ रहे हैं, कई तरह की ग्रुपिंग हुई है, सेक्सुअल हरासमेंट हुए हैं इस भाव स्पंदना में। तो अब वो
औरतों का भाव स्पंदना और आदमियों का भाव स्पंदना अलग अलग कराने लगे हैं। तो बीएसपी के बाद हाँ एक तरह की उनकी एक कमेटी है जहाँ ये डिसाइड किया जाता है कि कौन लोग जो हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी है। जब वो मुझसे मिले थे तो मेरे हस्बैंड से और मुझसे शुरू से ही वो बहुत चाहते थे कि हम दोनों जो हैं वो पूरी तरह से फुल टाइम वॉलंटियर बन जाएं, लेकिन हमारे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं हमारे, तो हम नहीं बन सकते थे फुल टाइम वॉलंटियर, क्योंकि हमें उनको एजुकेशन भी देनी है। ये भी मुझसे कहा गया कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तो तुम्हें सिर्फ एजुकेशन दी है, तुम अपने बच्चों को भी जाकर एजुकेशन दो। इससे ज़्यादा पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, अगर उनमें होगा तो वो खुद आगे बन जाएंगे। मैंने कहा सदगुरु जगह क्या कहते हैं अमेरिका है, यहाँ पे पढ़ाई बहुत महंगी है, इंडिया नहीं है कि वहाँ पढ़ाई फिर भी करी जा सकती है, कम पैसों में निर्वाह हो सकता है, लेकिन अमेरिका में बहुत महंगा है, मुश्किल है करना। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड जो थे वो बच्चों के लिए, जैसे ईशा का जो तीसरा स्कूल है ईशा विद्या, उसके लिए स्पॉन्सर करते थे, बच्चों को पैसा देते थे। कई बाइक खरीद के दी मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि वो बहुत बड़े फैन थे उनके साथ नॉर्थ अमेरिका राइड में भी वो गए हुए हैं कई बार। तो था हमें, मुझे कहीं से हिसाब से था कि हमारा जो बच्चा है वो भी इम्पैक्टेड है, लेकिन हमने ये सोचा कि वो भगवान है हमारे लिए, और उन्होंने हमारे बच्चे का भी ब्रेन वॉश किया कि तुम हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे पैरों में रख दो, मैं उसको देख लूंगा। और जब मुझे बहुत, और उसके बाद क्या हुआ कि जब कोविड का समय चल रहा था, हम लोग, मेरे हस्बैंड बाइक राइड में थे, तो हमने वहाँ पे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि तुम जो है यहीं मूव हो जाओ, कोविड बहुत ठीक रहेगा, यहाँ थोड़ा रिमोट एरिया है। तो हम मूव हो गए, मैकमिलवल करके जगह है, टेनेसी मैकमिलवल, वहाँ पर हम चले गए अपने बच्चों को लेकर, 2 बच्चों को लेकर, और हमारा जो बड़ा बच्चा था वो कॉलेज चला गया था तब तक। वहाँ जब हम पहुँचे तो फिर उन्होंने, उनका जो एक तरह का जो कल्ट कहते हैं अमेरिका में इसको, तो कल्ट का जो ये होता है कि वो बहुत पावरफुल होता है, वो हर तरह से आपको कंट्रोल करता है। आप अपने भाई बहनों से बात नहीं कर सकते, आप अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर सकते, आप कल्ट में ही जो लोग हैं जो आपस में रह रहे हैं उनसे आपस में मिल नहीं सकते। तो उनका जो एक फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म था, उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर रखा है। उनके पास 23,000 एकड़ के करीबन जमीन है वहाँ, और उसमें वो घर बना के देते हैं, और जो दाम है वो $1,000 से भी कम में पर एकड़ खरीदते हैं, और उसको हाफ एकड़ में वो 40 से 60,000 के करीबन लोकेशन के हिसाब से, और 80 से $120,000 के करीबन वो 1 एकड़ वो बेचते हैं। वो 1 एकड़ वो सिर्फ $1,000 में खरीदते हैं। तो आप देख लीजिए कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। जहाँ तक जो शोषण है लोगों का एज अ वॉलंटियर के रूप में, वो शोषण इस तरह से करते हैं कि उनसे फ्री में काम कराते हैं, इसलिए उनका दूसरा प्रॉफिट मार्जिन तो वहीं बन जाता है। क्योंकि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज करते हैं, इतना ज़्यादा हिप्नोटाइज करते हैं कि वो अपने उंगलियों से और कहेंगे कि आप अपना मास्क उतारो, और फिर वो पता नहीं क्या करते हैं कि यू डोंट नो कि क्या हो रहा है। तो एनीवे उनके जो प्रोग्राम्स है उसमें हिप्नोटिक है। आज मैं बल्कि एक सदगुरु ट्रुथ करके है पढ़ रही थी, उसमें वो कह रहा था एक मंक उसमें कि मैं वहाँ गया था तो हमसे ये कहा गया कि सदगुरु का मांस खाइए। मेडिटेशन में सदगुरु अपना मांस खाने को कहते हैं, और इस तरह से तुम और सदगुरु एक हो गए। तो ये क्या है, तांत्रिक नहीं समझ में आता। और ये जो आपने कैलाश वीडियो देखे हैं भारती के साथ, क्या ये सब तंत्र नहीं है? और जो ये इनिशिएशन कर रहे हैं, क्या ये आपको तांत्रिक नहीं लगता नीचे में? मतलब लोग देख कर भी आंखें मूंद रहे हैं। हम लोगों को इतना बुलेट किया गया, जब इन चीज़ों को हम लोग बाहर लेकर आए, हमने बहुत हिम्मत करी है इन चीज़ों को बाहर लाने में। अपनी फैमिली को हमने दाव में लगा दिया है, उनकी जान को दाव में लगा दिया है। मेरे हस्बैंड जो है वो इतने डिप्रेशन में है और इतना वो कोशिश कर रहे हैं इस डिप्रेशन से बाहर आने की। जैसे आपने कहा था कि आपने क्या किया ना, हम थेरेपी ले रहे हैं, हम 7 तरह की थेरेपी ले रहे हैं। हमारा बच्चा थेरेपी ले रहा है, अमेरिका में तो थेरेपी देते हैं, डिकल्ट करा रहे हैं। और उस थेरेपी के बाद हमें ये पता चल रहा है हाँ ये जो आदमी है पक्का फ्रॉड है,
ये खाली धर्म के नाम पे ये योगा के नाम के लोगों का पैसा लूट रहा है बच्चा, और कुछ नहीं, लुटेरा है। इससे बड़ा लुटेरा मैंने देखा, जिस पाँव को वो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में रखता है, वो जिस अंगूठे को, अपनी अंगूठे को, पाँव के अंगूठे को, उसी को वो बेचता है 3000 रुपये में, उसको फ्रेम लगा के। तो मैंने बहुत हिम्मत करी है। मैं कभी नहीं आना चाहती थी मीडिया में, कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी कहानी लोगों को बताऊं, लेकिन उसने मुझे विवश कर दिया। और आज मैं वो बताने जा रही हूँ जो बहुत ही भद्दा है, डार्क है, और एक औरत के लिए इस चीज को कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मैं अपनी ही कहानी नहीं कह रही हूँ, मेरी जैसी कम से कम 50 से 60 औरतें हैं जिनसे मैंने ये बात करी है और जिनकी कहानियां मेरी कहानी से बहुत सिमिलर करती हैं। तो हमारे रिलेशनशिप में जब हम मैकमिलर में गए थे, तो हमारा जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था वो थोड़ा सा उसमें खटास आने लगी थी, क्योंकि जगी वासुदेव ने मेरे हस्बैंड को बाइक से एक कोने में, वहाँ पे एक सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे ले जाके कहा कि तुम्हें फुल टाइम वॉलंटियर बनना पड़ेगा। और उन्हीं के एक पीए हैं, उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन और उन्होंने मुझसे कहा कि सदगुरु कह रहे हैं कि तुम्हें पॉसिबिलिटी देखती है मुझे, निर्वाण की प्राप्ति की पॉसिबिलिटी। और ये शायद उन्होंने 1000 सुंदर लड़कियों से कहा है, और जब पैसे वाली लड़कियां उनसे कहा है कि तुम जो पॉसिबिलिटी है तुम्हें, अब वो पॉसिबिलिटी क्या है वो तो वही जाने। आज भी मैं संतों से पूछती हूँ कि भाई बता दो भाई पॉसिबिलिटी क्या, अभी तक तो हमें पता नहीं चला कि वो हमने ऐसा कोई निर्माण तो प्राप्त किया नहीं है अभी तक।